હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? સરસ. મિત્રો, આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં રિવિઝનની એક્ટિવિટી 1માં ફની ટાઉન વિશે વાત કરી હતી. આજે આપણે એક્ટિવિટી 2માં જવાના છીએ. એના માટે હું તમને મારા બે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ વિશે વાત કરવાનો છું. મારા ફ્રેન્ડ્સ છે આ 2 mice. One is village mouse and the second one is town mouse. ફની ટાઉન યાદ છે ને? તો આ ફની ટાઉનના મિસ્ટર ટાઉન, તમે ગમે તે નામ એમના વિચારી શકો છો. હી ઇઝ ફ્રોમ ટાઉન, સો ટાઉન માઉસ, એન્ડ હી ઇઝ ફ્રોમ વિલેજ, સો વિલેજ માઉસ. સો ધીસ સ્ટોરી ઇઝ ઓફ 2 mice. They are not friends together. They are cousins. હવે આ સરસ મજાની સ્ટોરી માણીએ. This is not a very old story. It is about 2 mice. There were 2 mice. They were cousins. Once the town mouse went to the village mouse. The village mouse lived in a small hole. It collected grains, seeds, and nuts from the field and offered them to his cousin. The town mouse liked the food. Then it offered some cheese and chocolates. The village mouse was very impressed. The town mouse invited its cousin to the town. The village mouse joined its cousin. They traveled by milk van. They reached at the town mouse place. It had a cupboard in a house. The village mouse was impressed with the place. It saw a dark chocolate in a corner. The village mouse ran to it. But the town mouse stopped it. It is not a chocolate. It is poison. The village mouse became fearful after this. He returned to his village immediately. તો બાળમિત્રો, તમે હાલ જે સ્ટોરી જોઈ એના જ આધારે આપણી એક્ટિવિટી 2 કરવાની થાય છે. એક્ટિવિટી બિલકુલ સિમ્પલ છે. તમે જોશો પેજ નંબર 48 ઉપરની એક્ટિવિટી 2 સ્ટોરી જે રિટન ફોર્મમાં આપણી સામે છે એમાં થોડા વર્ડ્સ મિસિંગ છે. આપણે મિસિંગ વર્ડ્સ અને હિન્ટ્સની મદદથી ફિલઅપ્સ પૂરા કરીશું અને આપણી સ્ટોરી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો આવો જોઈએ પેરેગ્રાફ. ધીસ ઇઝ નોટ અ વેરી ઓલ્ડ સ્ટોરી. ઇટ ઇઝ અબાઉટ 2 mice. There were 2 mice. They blank are cousins. સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે હાલની ક્રિયા માટે વાત થતી હોય તો આપણે આરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ અહીં આપણે વાર્તા પછી એનો ઉલ્લેખ કરતા હોઈએ એટલે એ ક્રિયા માટે આરનો પાસ્ટ ફોર્મ લખવાનું થાય છે. અહીં ખાલી જગ્યામાં આરનો પાસ્ટ ફોર્મ શું થશે? વિચારો. આગળના વાક્યમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે જ. There were 2 mice. They were. Very good. W-E-R-E. Were. Cousins. They were cousins. Once the town mouse blank go to the village mouse. આ ખાલી જગ્યા માટે ગોનું પાસ્ટ ફોર્મ લખવાનું થાય છે. તો ગોનું પાસ્ટ ફોર્મ શું થશે? વેન્ટ. W-E-N-T. વેન્ટ. Once the town mouse went to the village mouse. The village mouse blank live in a small hole. Live. આ ક્રિયા થઈ ચૂકી છે એટલે live નો થઈ જશે lived.
યસ, LIVED, lived in a small hole. બાળમિત્રો, ઘણા એવા શબ્દો આવશે કે જેને આપણે પાસ્ટ ફોર્મમાં ચેન્જ કરવા માટે ઈડી લખવાથી પાસ્ટ ફોર્મ થઈ જાય છે, પણ ઘણા બધા એવા પણ શબ્દો આગળ આવશે કે જેમાં તમારે શબ્દ જ આખું ચેન્જ કરવું પડે છે. આગળ એવા શબ્દો આવશે ત્યારે હું તમારું ધ્યાન દોરીશ. આગળ વધીએ. ઇટ બ્લેન્ક કલેક્ટ ગ્રેન્સ, સીડ્સ એન્ડ નટ્સ ફ્રોમ ધી ફિલ્ડ. કલેક્ટ, આને પણ પાસ્ટ ફોર્મમાં બદલવા માટે લીવની જેમ ખાલી ઈડી તમારે જોડવાનું થશે. તો સ્પેલિંગ તમે કહી શકશો? યસ, COLLECTED, collected. It collected grains, seeds and nuts from the field and blank offer them to his cousin. Offer, offered, OFFERED, offered them to his cousin. The town mouse blank like the food. Live, lived, collect, collected, offer, offered ને એવી જ રીતે like, liked, LIKED, liked. Then it blank offer some cheese and chocolates. આ શબ્દ અગાઉ આવી ગયો છે. Then it offered some cheese and chocolates. The village mouse was very blank impress. Impress, હવે તમને 4-5 શબ્દોની પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે. તો ઇમ્પ્રેસનો પાસ્ટ ફોર્મ impressed. Yes, IMPRESSED, impressed. The town mouse invite its cousin to the town. અહીં invite પણ ચેન્જ થઈ જશે અને અહીં લખાશે INVITED. The town mouse invited its cousin to the town. The village mouse blank join its cousin. Join, joined, JOINED, joined its cousin. They blank travel by milk van. તો ટ્રેવલ કરી હતી, ટ્રેવલ થઈ જશે ટ્રેવલ્ડ, TRAVELLED, traveled by milk van. They blank reach at the town mouse's place. Reach, reached, REACHED, reached. It blank have a cupboard in a house. Have, had. It had a cupboard in a house. The village mouse was blank impressed with the place. Yes, impressed, IMPRESSED, impressed with the place. It blank see a dark chocolate in a corner. બાળમિત્રો, મેં અગાઉ તમને જે વાત કરી હતી કે ઘણા શબ્દોને પાસ્ટ ફોર્મમાં ચેન્જ કરતી વખતે આપણે ઈડીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ બધા શબ્દો એવા નથી હોતા. જે રીતે આપણે જોયું, આરની જગ્યા વર, ગોની જગ્યા વેન્ટ, હેવ થઈ ગયું હતું, હેડ. એ જ રીતે સી થઈ જશે સો. સોની સ્પેલિંગ શું લખશો? વિચારો. યસ, સો, SAW. It saw a dark chocolate in a corner. The village mouse blank run to it. Run. આ શબ્દ પણ પાસ્ટ ફોર્મમાં લખતી વખતે થોડો બદલાઈ જશે અને થઈ જશે ran, RAN, ran to it. But
ધી ટાઉન માઉસ બ્લેન્ક સ્ટોપ ઇટ. સ્ટોપ, જે તે વખતે ટાઉન માઉસે એને સ્ટોપ કર્યું હતું. તો હવે આપણે ભૂતકાળની વાત કરીએ છીએ તો સ્ટોપ થઈ જશે સ્ટોપ્ડ. યસ, STOPPED, સ્ટોપ્ડ ઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ એ ચોકલેટ, ઇટ ઇઝ પોઈઝન. ધી વિલેજ માઉસ બ્લેન્ક બીકમ ફિયરફુલ આફ્ટર ધીસ. બીકમ, આ શબ્દ પણ બદલાવીને આપણે લખીશું બીકેમ. BECAME, became fearful after this. He blank returned to his village immediately. Return સિમ્પલ છે. અત્યાર સુધી તમે આખી એક્સરસાઇઝમાં ઘણા બધા શબ્દોને ચેન્જ કર્યા છે. અહીં પણ સિમ્પલી તમારે ED લગાવવાનું છે. તો સ્પેલિંગ થઈ જશે returned, RETURNED, returned to his village immediately. તો બાળમિત્રો, આગળ પ્રવૃત્તિના બીજા ભાગમાં વાર્તાની ઘટનાઓને 7 સેન્ટેન્સીસમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. પણ એ એમના સાચા ક્રમમાં નથી, પણ તમને વાર્તાના વિડીયોથી અને એના પછી આ ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાથી વાર્તા વિશે વધારે સમજ મળી હશે. તો હવે આપણે એ સેન્ટેન્સીસને યોગ્ય ક્રમમાં મૂકીશું. જો તમે ધ્યાન આપશો તો પહેલાં વિલેજ માઉસ ટાઉન માઉસના ત્યાં વિઝિટ કરી હતી કે પછી ટાઉન માઉસ વિલેજ માઉસના ત્યાં ગયો હતો? તો તમારે આ વાક્યોમાં એ ક્રિયાઓ વધારે ધ્યાનથી જોવાની છે કે જે પહેલાં ટાઉન માઉસે કરી હતી, જેથી તમે સાચા ક્રમ ઓળખી શકશો. સૌથી પહેલાં વાર્તામાં ટાઉન માઉસ એના કઝિનના ત્યાં વિઝિટ કરે છે. તો આપણો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ થાય છે ધી ટાઉન માઉસ વિઝિટેડ ઇટ્સ કઝિન. વિલેજ માઉસના ત્યાં વિઝિટ કર્યા પછી બીજી ઘટના કઈ થાય છે? યસ, સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે ધી વિલેજ માઉસ કલેક્ટેડ ફૂડ ફ્રોમ ધી ફિલ્ડ. એ ફિલ્ડમાંથી એનો ફૂડ કલેક્ટ કરતો હતો. પછી શું થયું હશે? યસ, ધી ટાઉન માઉસ ઓફર્ડ સમ ચોકલેટ્સ ટુ ઇટ્સ કઝિન. અને એના પછી તમને યાદ છે વિલેજ માઉસ વેન્ટ ટુ ધી ટાઉન. યસ, ધી વિલેજ માઉસ વેન્ટ ટુ ધી ટાઉન. અને ત્યાં જઈને વિલેજ માઉસને ચોકલેટ દેખાઈ હતી. તો આપણો ફિફ્થ સેન્ટેન્સ થશે ધી વિલેજ માઉસ રેન ટુ ધી કોર્નર ફોર ધી ચોકલેટ્સ. પણ એ ચોકલેટ તો હતી નહીં, તો આગળ યસ, ધી ટાઉન માઉસ સેવ્ડ હિઝ કઝિન ફ્રોમ પોઈઝન. એન્ડ ધી લાસ્ટ રિમેનિંગ સેન્ટેન્સ ઇઝ ધી વિલેજ માઉસ રિટર્ન્ડ ટુ ધી વિલેજ ઇમિડિયેટલી. તો બાળમિત્રો, આ હતો આપણો વાર્તાનો સાચો ક્રમ. તો બાળમિત્રો, આશા છે તમને આ વાર્તા સાંભળવાની મજા આવી હશે અને આ પ્રવૃત્તિઓ પછી તમે આ રીતે એક્શન્સ માટે પ્રેઝન્ટ અને પાસ્ટ ફોર્મનું પણ થોડું ધ્યાન રાખશો. સો હવે મળીએ આપણી નેક્સ્ટ પ્રવૃત્તિ માટે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. ત્યાં સુધી કીપ લર્નિંગ, એન્જોય. नमस्ते बाल दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे। और हमने पुनरावर्तन के जरिए पिछले एपिसोड में सर्वनाम के बारे में जाना था और साथ ही साथ इकाइयों की मुख्य मुख्य बातें भी जानी थी। आज हम शब्दकोश का क्रम किस प्रकार से होता है। वैसे तो आप कई सारे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखते होंगे, जमाते होंगे, लेकिन आज उसकी हम यहाँ पर समझ प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास करने वाले हैं। पहले मैं आपको शब्दकोश के लिए महत्वपूर्ण जो क्रम है उसकी एक जानकारी देता हूं, तो जरा देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ वर्ण दिखा रहा हूं और शब्दकोश के क्रम के लिए आपको इसी क्रम को याद रखना है और समझना भी है। तो मेरे साथ पढ़ते भी जाइए। ये पहला जो वर्ण आप देख रहे हैं ये कौन सा है? हाँ, यह है अम। दूसरा है अ, तीसरा है आ, चौथा है ई,
पांचवा है ई, छठा है ऊ, सातवां है ऊ, आठवां है, हाँ आठवां है री। देखिए रू नहीं, इसका उच्चारण हिंदी में होता है री, है ना, तो आपको भी री बोलना है। तो बोले मेरे साथ एक बार, री। अगला जो वर्ण है ए, अब उसके बाद आएगा ऐ, उसके बाद आएगा ओ और उसके बाद आएगा औ। शब्दकोश का क्रम तय करने के लिए हमें इन स्वरों को इस क्रम में याद रखना आवश्यक है। जब शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखना है तो वर्णमाला का ये क्रम भी हमें जरूर समझना चाहिए। तो जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ और वर्णों को जरूर पढ़ते भी जाइए। पहला वर्ण तो आपको पता है क्या, कौन सा है ये? हाँ, ये है क। उसके बाद आएगा, बोलिए, नहीं, उसके बाद आएगा क्ष। आप कहेंगे तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि क के तुरंत बाद तो हमेशा ख आता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि जब वर्णमाला लिखते हैं तब क के तुरंत बाद ख आएगा, तो आप सही है। लेकिन जब हमें शब्दकोश का क्रम तय करना है, यानी कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है, तो क के बाद क्ष ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ होगा कि क्ष बना है क और श के मिलन से, यानी कि वैसे तो क्ष संयुक्ताक्षर है, संयुक्त वर्ण है, और उसमें जुड़ा हुआ है क और श। देख रहे हैं ना आप? हाँ, इसीलिए क के तुरंत बाद हम शब्दकोश के क्रम में क्ष वाले शब्दों को रखते हैं। अब आएगा ख, है ना, तो आप सही है। ख के बाद ग, उसके बाद ग, उसके बाद च, उसके बाद छ, उसके बाद ज, और अब यहाँ पर भी जैसे क्ष बीच में आता है, इसी प्रकार से हम अंत में एक और वर्ण लिखते हैं, ये है ज्ञ, है ना। यहाँ पर भी आप सोचेंगे कि ये तो अंत में आता है और ये तो ज के तुरंत बाद आप यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये ज्ञ बना है, ज के साथ जुड़ा हुआ है, एक अनुनासिक है इय, और इनके मिलन से हमें एक नया वर्ण मिलता है, ये वर्ण है ज्ञ। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि ज के तुरंत बाद ज्ञ वाले शब्द यहाँ पर शब्दकोश के क्रम के अनुसार हमें रखने हैं। उसके बाद आएगा ज, ट, ठ, ड, ड, अण, त, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि त के तुरंत बाद त्र, और ये तो संयुक्त वर्ण है। अब जरा सोचिए कि जैसे क्ष बना है, जैसे ज्ञ बना है, इसी प्रकार से त के साथ कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ होगा? जरा आप खुद बोल के ये देख लीजिए, बोलिए, त्र। हाँ, तो यहां त के साथ एक और वर्ण का उच्चारण भी हम करते हैं। कौन सा वर्ण है, जरा सोचिए तो। हाँ, त के साथ जुड़ा हुआ है र, और इसी प्रकार से ये भी संयुक्त वर्ण है, यानी कि वर्णमाला में भले हम इसका क्रम अगर नहीं लिखते, लेकिन शब्दकोश के क्रम में अगर हमें शब्दों को रखना है तो त के तुरंत बाद ही त्र वाले शब्द आएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्र के बाद आएगा थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श। अब सोचिए, ये आ गया श, है ना। तो यहाँ पर भी श के साथ एक और वर्ण जुड़ा है और वह वर्ण है र। तो श्र, श के तुरंत बाद हमें यहाँ पर लिखते हैं कि श के तुरंत बाद ही श्र वाले शब्द आएंगे। आइए, श, स, और अंत में है ह। तो विद्यार्थी मित्रों, आप वर्णमाला का क्रम जानते थे, लेकिन उसी क्रम में हमने यहाँ पर कुछ और वर्णों को, यानी कि 4 ऐसे वर्ण जोड़े हैं, और उनका क्रम कहाँ पर होता है? क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। ये भी यहाँ पर जानकारी हमने प्राप्त की है। तो अब जब भी आपको शब्दकोश के क्रमानुसार शब्दों को रखना पड़ेगा, या रखने की प्रवृत्ति आप जब भी करने वाले हैं, तब आप सरलता से शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रख सकेंगे। आइए एक ऐसा उदाहरण भी यहाँ पर देख ही लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखाता हूँ। भूकंप, तूफान, मेहनत, आकाश, श्रेष्ठ, निर्दोष, अंगूर, मंजिल, सुंदर। यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने आपके लिए 9 शब्द ऐसे रखे हैं कि जो भिन्न भिन्न वर्णों से बने हुए हैं। अब हमें
इनको शब्दकोश के क्रम में ही रखना है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ये जरा आपको सोचना भी है और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। हाँ, आपने सोच लिया होगा कि पहला वर्ण इनमें से कौन सा आएगा। फिर से एक बार आपको सारे स्वरों को एक बार याद कर लेना चाहिए। तो सोचिए, इसमें से पहला शब्द कौन सा आएगा। हाँ, पहला शब्द आएगा अंगूर, है ना, क्योंकि ये अ से शुरू होता है और उसमें भी ये अनुस्वार वाला है और अ से बने हुए और शब्द इन शब्दों में नहीं है, इसलिए शुरुआत कहाँ से होगी, अम से शुरुआत होगी और ये पहला शब्द आएगा अंगूर। इसी प्रकार का जो दूसरा शब्द यहाँ पर है, अ के बाद आएगा आ, यानी कि आकाश, है ना। अगर यहाँ पर अवधूत, अगन ऐसा कोई भी अ वाला शब्द होता तो वह अंगूर और आकाश के बीच में आता, लेकिन ऐसा कोई शब्द यहाँ पर मैंने नहीं रखा है, इसीलिए अंगूर के तुरंत बाद क्या आया, आकाश। अब सोचिए कि भाई स्वर वाले कोई शब्द यहाँ पर है तो नहीं है, इसीलिए अब जो भी शब्द है वह व्यंजनों से जुड़े हुए हैं, तब उनके क्रम को आपको देखना चाहिए कि भाई क है, ख है, ग है, ग है, लेकिन क के तुरंत बाद क्या है, तो क्ष है। तो यहाँ क्ष वाला है कि नहीं है, ज्ञ वाला है कि नहीं है, श्र वाला, त्र वाला कोई शब्द है कि नहीं है, ये भी आपको समझना है। तो क वाला कोई शब्द है क्या, तो देख लीजिए जरा, यहाँ पर नहीं है तो उससे आगे आप वर्णमाला को बोलते जाइए, क ख ग घ, इस प्रकार से आप क्रम तय करते जाइए। तो तीसरा जो शब्द आएगा वह कौन सा आएगा, हाँ वो आएगा तूफान। इससे आगे वाला शब्द आएगा निर्दोष, त के बाद आएगा न, उसके आगे सोचिए जरा, तो भूकंप, उसके बाद आएगा म, तो शब्द आएगा मंजिल, है ना। यहाँ पर म वाले दो शब्द हैं, लेकिन जब स्वर का क्रम याद रखते हैं तो पहला अनुस्वार वाला आएगा, इसलिए मंजिल आया। अब दूसरा आएगा मेहनत, है ना, और श्रेष्ठ और सुंदर दो शब्द बाकी बचे थे, तो उसमें श्रेष्ठ पहले आएगा और सुंदर बाद में आएगा। ऐसा क्यों है, आपको पता है कि भाई श्र बना है श और र से, और श हमेशा पहले आता है और स बाद में आता है, इसीलिए श्रेष्ठ और अंत में आएगा सुंदर। तो आप भी इस प्रकार के कई सारे अभ्यास आपकी किताब में दिए गए हैं, तो आपको ज़रूर करने हैं और शब्दकोश के इसी क्रम को अच्छी तरह से समझना है। आइए एक और भी अभ्यास यहाँ मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ताकि एक ही वर्ण से बने हुए शब्दों को हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि ये तो भिन्न भिन्न वर्णों से बने हुए शब्द थे और वर्णमाला का क्रम हमें पता था, इसलिए हमने इन शब्दों को इसी क्रम में रख दिया। लेकिन अगर एक ही वर्ण से बने हुए 10-12 शब्द हमें दिए जाते हैं तो उनका क्रम हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, उसका एक अभ्यास भी यहाँ पर देख लेते। तो देखिए जरा, शब्द पढ़ते जाइए। विजय, वृक्ष, वामन, वंदन, वैकुंठ, वचन, वैशाख, वौठा, वीर, वेताल, व्यक्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 शब्द है और इन शब्दों की विशेषता यह है, हर एक शब्द की शुरुआत व से होती है। इस क्रम को समझने के लिए हमें फिर से एक बार क्या रखना पड़ेगा, हाँ स्वर का जो क्रम था, अम अ बोलते जाइए। हाँ, तो ये क्रम अगर आपको सही रूप से पता है तो आप एक ही वर्ण से बने हुए शब्दों को भी सही क्रम में जमा सकते हैं, है ना। इसमें पहला शब्द कौन सा आएगा, हाँ अम, और यहाँ पर अनुस्वार वाला जो शब्द है वह कौन सा है, हाँ वह है वंदन। तो वंदन, और वह वाला यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसकी शुरुआत व से होती है ना। हाँ, तो आएगा अब वचन, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, वंदन के बाद तुरंत आएगा वचन। अब देख लीजिए कि भाई वह वाला कोई और शब्द है, नहीं है, आएगा वामन, है ना, वम व वाह। तो वाह के आगे आएगा हाँ वी, लेकिन वी हम दो प्रकार से बोलते हैं, वी और वी। तो यहाँ पर ये वी वाला कौन सा शब्द पहले आएगा, तो देख लीजिए जरा, विजय। क्यों आएगा, ये आपको पता है कि हम दो प्रकार से ई का उच्चारण करते हैं, रस्वई और दीर्घई। तो यहाँ पर ये रस्वई है, इसलिए विजय शब्द दीर्घई से पहले आएगा। अब विजय के बाद तुरंत शब्द आने वाला है वीर, क्योंकि इसके साथ दीर्घई मात्रा
जुड़ी हुई है। अब आगे कौन सा शब्द आएगा ये आपको सोचना है। तो दो शब्द नहीं है, लेकिन कौन से नहीं है? तो वो वाला यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। वीर के तुरंत बाद अब क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पर आएगा वृक्ष, क्योंकि यहाँ री जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर यहाँ पर वी के तुरंत बाद अगर कोई वो वाला शब्द होता तो वो आता, यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वी के तुरंत बाद आया वृक्ष। अब इससे आगे सोचिए तो क्या आएगा? ए वाला आएगा। तो यहाँ पर ए वाला कौन सा शब्द है? हाँ, वेताल। और उससे आगे आएगा हाँ वैकुंठ, है ना। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि भाई वैकुंठ पहले क्यों आया और वैशाख क्यों नहीं आया? दोनों वै वाले हैं, यानी कि व के ऊपर दो मात्रा है, जैसे कि ए और ऐ। तो ए वाला तो हमने वेताल लिख लिया, लेकिन यहाँ पर मैं वैकुंठ को पहले लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा? हाँ, तो इसके लिए हमें इस शब्द के दूसरे वर्णों को देखना चाहिए, और दूसरा वर्ण वैकुंठ में क है और वैशाख में श है, और वर्णमाला के क्रम के अनुसार क पहले आएगा, है ना, और श तो अंत में आता है। इसीलिए वैकुंठ वाला शब्द पहले आएगा और उसके बाद यह शब्द आएगा वैशाख। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और उसके बाद आएगा कौन सा? हाँ, वौठा। और उसके बाद एक शब्द आएगा व्यक्ति। यहाँ पर व किसके साथ जुड़ा हुआ है? य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस क्रम को भी हमें सही रूप से याद रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दकोश के इस क्रम के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और इसकी ज़्यादा समझ बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखने का अभ्यास करना चाहिए। आपके स्कूल में इसी प्रकार का शब्दकोश भी होगा। जब आपका स्कूल खुल जाए तब जाकर आप अपने शिक्षक से मिलकर इस प्रकार के शब्दकोश को देख सकते हैं, और इनके आधार पर भी शब्दों को किस प्रकार से हमें रखना है या किस प्रकार से शब्दकोश के क्रम को तय करना है, ये भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज आप शब्दों को किस प्रकार से अब हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। धन्यवाद।